Hello everyone. Before I start, I would like to say Happy Republic Day to all of you, and thank you, sir, for coming over here. We are very happy that you have come over here, and I want to extend my welcome for all of you. And now I want to call my anchor, Laiba. Laiba, please come Public Day. here, and I am your host, Laiba Fatima, on behalf of Gold Institute of English Language. I would like to extend my warm welcome to all of you. Thankful to our founder coach Dr. Avnin sir, invited guests, and all the students for joining us today. Gold Institute is a premier institute in Jaunpur that is primarily known for quality education and equal opportunity for all. Any organizations come in the mind of a visionary personality first for this one. Where we are right now, the man behind this none other than Dr. Amnin sir. He is the founder of this institute. I am very us. Sir, you have been awarded Doctor of Philosophy in English. Having more 15 plus year of experience in teaching, you are changing the lives of countries. Number of students like us, your presence has made us feel proud. You have published more than 10 national and international research paper and attended international conference. It will be my proud privilege to invite you on stage to give a few words of wisdom and insight on this great occasion. First of all, I want to say thanks to our invited professors. So I have Professor Tushar Arya sir, and I have with me Professor Pradeep Kumar Maurya sir. So I want to thank you, sir, for both of you to come here. And as you all know, this is a very special occasion for us, for the whole nation as well, we can say. And the whole nation is celebrating Republic Day. And this day cannot be an ordinary day, we can say, because this day is known for adoption of constitution. Actually, it was prepared in 1949, but it came into power and it started implementing in 1950. And since then, on every 26th January, we celebrate this day as Republic Day. So we are an English institution. We know that we are focusing on language skills and speaking more and more. So keeping that in mind, I know that our constitution promotes freedom of expression. So if you want to express yourself, firstly, you need to know a language first. Okay, so expression is the necessity of any learner. So to express yourself, language becomes necessity. So in order to impart that kind of education, I have started this institution for you. So I want to say thanks for all the students for coming here and joining this event in particular. So I want to say language is very important, and in order to implement the rules given in the constitution, we have to do one thing, like we have to develop this skill of speaking. So our institute is known for spoken English, and we promote a language. Any language you must know, and you should express yourself without any discrimination. You should know that this language is very important and you have to express yourself under any circumstances. So that is what I have to say. As the coach of this institute, I again thank you all for coming here. And I want to say to my anchors, so please go ahead and proceed with the events. Thank you so much for this. This word energizes us and makes us feel proud that we are the part of this institute. Thank you to all of you for joining us. तो आगे जाने से पहले मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगी. तो शुरू करते हैं. ये आजकल के बेचारे शायर, ये आजकल के बेचारे शायर कहे है जिसका सिरा नहीं है. ये आजकल के बेचारे शायर कहे है जिसका सिरा नहीं है. अदब की महफिल में जा रहे हैं, अदब का इनको पता नहीं है. कि अदब की महफिल में जा रहे हैं, अदब का इनको पता नहीं है. सियासतों का रिवाज है इन अदालतों को खरीदने का, कि सियासतों का रिवाज है इन अदालतों के खरीदने का. सभी के हाथों पे खू लगा है, किसी की फिर भी खता नहीं है. सभी के हाथों पे खू लगा है, किसी की फिर भी नहीं खता है. जला दी बस्ती उजाड़े गुलशन, किए है कितने यतीम तुमने. जला दी बस्ती उजाड़े गुलशन, किए है कितने यतीम तुमने. बिलखते बच्चों की सिसकियों से अभी भी दिल क्या भरा नहीं. तो थैंक यू फॉर माय सर. So I would like to invite
Professor Tushar Arya sir, please come on the stage. मैं अपने कलीग और परम मित्र डॉक्टर अवनीत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप सभी बच्चों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए और हमें आमंत्रित किए। और जैसा कि आपको पता ही है कि भाई 26 जनवरी या फिर रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बात करना है, क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएटेड हैं यहाँ पर क्या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इतना तो आप लोगों को पता ही है। और जैसा कि रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के बाद संविधान निर्माण हुआ 1950 से लागू हुआ, तब से मनाया जाता है। और अब वर्तमान समय में अगर इसके परिप्रेक्ष्य को समझे कि भाई आप स्वतंत्र कब, व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, या फिर आप संविधान को कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो संविधान क्यों बनाया गया है इसको आपको समझना पड़ेगा। और उम्मीद है आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा होगा, तो अगर आप उनको पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो उनको एक बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनमें भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में लिखा गया है, तो उनको पढ़ लीजिए तो आपको संविधान के पीछे का क्या उद्देश्य था वो समझ में आएगा। और तब आप अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र मानेंगे कि आप भारत देश के नागरिक है, किस तरीके से आप भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने अभी बताया आपको कि आप तब स्वतंत्र होंगे जब अपनी अभिव्यक्तियों को आप व्यक्त कर पाएंगे, और वो व्यक्त करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छी लैंग्वेज की। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर अवनीत जी ने ये संस्था शुरू किया है और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम कहीं पर भी आप जाए, किसी भी देश में जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए, किसी भी स्थान पर जाए, तो आप अपनी अभिव्यक्तियों को आसानी से व्यक्त कर पाए। इस बीच में लैंग्वेज आपके बीच में बाधा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हालांकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन अगर आप अपने देश में ही आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो आप हर जगह पर हिंदी से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते। आप चाहे साउथ में चले जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो हर जगह पर अलग अलग भाषाएं और इतनी भाषाओं का ज्ञान आपको होना संभव बड़ा कम है। इसलिए एक जो इंग्लिश है वो आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो हर जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये संस्था चलाई जा रही है। और मैं पूरे भरोसे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश का एजुकेटर डॉक्टर अवनीत सर से बढ़िया पूरे जौनपुर में तो अभी तक नहीं, ना तो अभी तक मैंने देखा है। कम से कम आपको बता दें कि 2000 से 2500 टीचर हमारे मित्र हैं और 2000 से 2500 टीचर से मैं मिल चुका हूँ, लेकिन तो ऐसे व्यक्तित्व और ऐसा ज्ञान अभी तक इंग्लिश के क्षेत्र में मैंने किसी के पास नहीं देखा है। और खास आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी कुरान निकले हैं। So I would like to call you Aman. Thank you so much, Laiba, for giving me this wonderful opportunity to speak about the Republic Day. So I'm very excited to be here, as we know that today is the Republic Day, and we are very happy to hear. And we have also lecturers and like Dr. Amin sir and Maurya sir. We have all of us, and also we have a large amount of students, and they have a curious interest to celebrate this day with positive mindset. So let us talk about Republic Day. So this day reminds us to take an action to make India strong. So as we are Indian youth, so everybody has a responsibility to make India strong and take one action to educate ourselves and try to know constitution. हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं, हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं, हम नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं। हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं, हम नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं। इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको, इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको, हम कहाँ भी कुछ भी कमाने के सिवा सोचते हैं। Moving ahead, I would like to call you Professor Pradeep sir. Please come over here and say something. गणतंत्र दिवस के अवसर पर
आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे गोल्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अवनीन सर और हमारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर तुषार आर्या जी जो टीडी कॉलेज में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आप प्यारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हम उसके अगर कुछ बिंदुओं पर अगर बात करें तो 1947 में देश को आजाद हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत होती है। किसी भी देश को, कुछ देशों में जो कानून है वो लिखित नहीं है। जैसे हम इंग्लैंड के संविधान को देखते हैं तो एक अलिखित संविधान है, लेकिन वहां पर उसके द्वारा भी चलाया जा रहा है, एक मौखिक संविधान कह सकते हैं। तो भारत में भी एक प्रकार की एक चुनौती थी कि भारत तो स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन उसको कैसे चलाया जा सके, इस देश को कैसे विकसित किया जा सके, देश का निर्माण कैसे हो, देश के पास जो चुनौतियां है, जो चैलेंजेस है, उसको कैसे सामना किया जा सके। तो 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, तब से ये गणतंत्र कहलाने लगा। यानी 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और ये 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इस समय। और गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री हो गया है, एक गणतंत्रात्मक देश हो गया। मतलब कि आप 1947 से पहले गुलाम थे, तो अब गुलामी से मुक्ति के लिए ही गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, समानता का अधिकार दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि सब अब एक समान हुए हैं, और इसके तहत और कई मौलिक अधिकार भी बाद में जुड़े। साथ ही साथ पंथ निरपेक्षता की अवधारणा आई कि एक देश में मतलब कि हम विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न बोलियों को बोलते हैं, विभिन्न संप्रदायों पंथों के बीच में रहते हैं, तो उनके बीच एक सद्भाव की भावना हो, एक जुड़ाव महसूस हो। तो यही गणतंत्र का उद्देश्य है, और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया भी जाता है कि जो देश में बहुभाषी लोग हैं, बहुधार्मिक लोग हैं, बहुजाति हैं, बहु संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच एक सद्भाव की भावना रहे और मिलजुल कर हम देश का विकास कर सके, हम समाज का विकास कर सके और भारत को एक नए आयाम को स्थापित करने में उसको मदद दें। इसी के उद्देश्य से होता है। तो जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, वतन की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं अपने सारे शौक मिटाती चली गई, मैं अपने सारे शौक मिटाती चली गई, एक आग अपने दिल में चलाती चली गई, दरिया से ज्यादा गहरी हैं आंखें ये झील सी, अश्कों को इनमें अपनी छिपाती चली गई। एक उम्र बीत जाती है रिश्ते बनाने में, एक उम्र बीत जाती है रिश्ते बनाने में, एक उम्र से मैं उसको मनाती चली गई। सो I would like to invite Sanjit. Please share your opinion. First and foremost, before I begin, I want to start by saying Happy Republic Day to all of you. I feel like it's a really an honor for me to be here today. And by the way, my name is Engineer Sanjit. I am born and brought up in Bhadoi. So as we all know, we have a shortage of time. So without taking much of time, I want to talk about Republic Day. Why this day is celebrated in our country and what is the reason behind it. So it is a matter of fact that our constitution was made by Dr. Bhimrao Ambedkar, and he did a hard work. That's why he was able to write our constitution. And it is necessary to tell you our constitution was prepared a period of 2 years
11 months, 18 days. And then it officially adopted on 26 November 1949. But it came into effect on 26 January 1950. And this is why we celebrate our Constitution Day and we celebrate our Republic Day. And guys, it is very important to tell you that being a citizen of this country, it's our duty to respect our nation, to respect our constitution, and we should always stand for our India. If someone will attack, someone will do anything bad for our country, so we will, respond them the way Dr. Tushar sir has told. In India, there is Hindu, Muslim, Christian. So our constitution allowed us to, live with harmony. So being a good citizen of this country, it's our duty to respect every religion, to give respect everyone, and then there is a formula: give respect and take respect. If you will not give respect to anyone, then you will be not respected. So that's all about me. जय हिंद, जय भारत. एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है और वो वर्ड कितनी बार यूज मैंने किया है, तो आप काउंट करिएगा. मुझे देखना है किसका मतलब मैथ अच्छा है, बस काउंट करना है. ठीक, मैं स्टार्ट करूं? ओके. थोड़ा पास करिए भाई. नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते हुए नजर से देखा. नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते हुए नजर से देखा. नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर को हमने नजर से नजर चुराते हुए नजर से देखा. आप बताइए कितनी बार इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा यूज हुआ है और कितनी बार? 17 बार. 17. आप लोग बता दीजिए प्लीज. सर आप बताइए. 22. बताइए. 11. और कोई? नहीं सर, आप लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें. अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी. नहीं सर, इसमें यही था कि आपको मतलब पहली बार में पता करना था. नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते हुए नजर से देखा. नजर बाग में नजर को हमने नजर से नजर मिलाते हुए नजर से देखा. नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर को हमने नजर से नजर चुराते हुए नजर से देखा. 21. और कोई? इसमें तो सब नजर ही आ रहा है हमको. Abhishek, please come over here. Don't miss this opportunity to shine on a stage and make your teacher proud. Please come over here. साथियों, तो दोस्तों आज 26 जनवरी है. इस दिन छुट्टी का नहीं है, बल्कि हम लोग को भारत का आत्मसम्मान करने का है. तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाला बेकार है तो वो बेकार ही जाएगा. तो दोस्त हमारे देश की युवा में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मतलब लगनी चाहिए. वो हम लोग को ये याद दिलाते हैं कि हम लोग संविधान को फॉलो करें. तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब संविधान को मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं. आज की डेट में देखा जाए तो संविधान को हम लोग फॉलो जितना करेंगे और हम संविधान को जितना पढ़ेंगे, उसको जितना फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपने खुद को साबित करेंगे कि हम लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं और हमारा देश आगे तभी जाएगा. और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा. कतरा कतरा लहू मेरे लहू इस वतन का काम आएगा. मेरे जाने के बाद भी तिरंगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही मुस्कुराएगा. नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है इसे ना पालो इसे. दिलों में खाली से निकालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे. ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब वतन के संभालो इसे. धन्यवाद. गजल के वास्ते लफ्जों का एक मीज़ान रखते हैं. सुलगते दिल में हम तहजीब का लोबान रखते हैं. सुलगते दिल में हम तहजीब का लोबान रखते हैं. ज़माना अब भी कायल है हमारे नर्म लहजे का. ज़माना अब भी कायल है हमारे नर्म लहजे का. हम अहले जौनपुर हम अलग पहचान रखते हैं. And please put your hands together to appreciate her. Her name is Kiran.
First of all, before I go ahead, I would like to say a very special good morning to all of you. When it comes to Republic Day, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन उस समय हमारे पास संविधान नहीं था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इस दिन इसलिए आज 26 जनवरी डे मनाया जाता है। इनफैक्ट हर जगह स्कूल कॉलेज आज के दिन सेलिब्रेट ऑल इंडिया में किया जाता है। इस टॉपिक में एक शायरी कहना चाहूंगी। संविधान है हमारी शान, संविधान है हमारी शान, गणतंत्र है हमारी पहचान, गणतंत्र है हमारी पहचान। 26 जनवरी का ये है दिन, 26 जनवरी का है ये दिन, भारत माता को है हमारा प्रणाम। India got independence from British rule on 15 August 1947. But even after independence, India did not have its own constitution. So true freedom was not complete at that time. January is celebrated as Republic Day because on this day in 1950, the Constitution of India come into force. From this day, the people of India became the real rules of the country. That is why we celebrated 26 January as Republic Day. It was pleasure talking to all of you. I enjoyed even a lot. I can say I am very thankful to all of you. Thank you for sir for your guidance and your support, and above all